एवरीवन, दिस इज सोनिया दत्ता। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, आई एम अ स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट, कोच एंड योर फ्रेंड. Okay, so today I'm here with another card reading. The topic is how is your relationship's present scenario. Okay, so the first question is the present scenario. आपका situation अभी कैसा है? Then the second is what moon is guiding us, because as it is approaching 14th of December, the new moon, and even the solar eclipse is there. So let's see what moon energies are guiding us, what we need to do in this period. Third is yes and no, a random question, yes and no. It can be like you can ask your question, let me see what's there. You just have to give a pause, ask your question and see. And the last is a special guidance from dragon cards for the relationship. Okay, so let's jump into it. As is already there, the first pile is the blue turquoise bracelet. The second one is this is the beautiful rhodochrosite. Okay, and the third is the strawberry quartz, one of my favorite. All three are my favorite, I say. Anyhow, so let's start with the first pile. What is the magic holding for us? Okay. Oh wow, the first only one card is there. Okay, pile number one, turquoise blue. The first question, what is the present scenario of your relationship? Let me see, only one card is there. Okay. Okay. Oh wow, beautiful card. ओके, अभी तक आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ दे रहे थे. यू यूज टू फील लाइक दिस कि मैं हमेशा, जो भी ये देख रहा है या जिसने भी सिलेक्ट किया है, दैट पर्सन यूज टू थिंक कि मैं हमेशा दे रहा हूँ या दे रही हूँ इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. बट नाउ इट्स अ टाइम ऑफ गेटिंग बैक. See, such a beautiful card has come. Balance is there, and your energies are there over here. These energies are green color. You were feeling, कहीं ना कहीं आप feel कर रहे थे कि I am not getting what I am giving. So now be happy because it's time that universe is giving through your partner, or it is balancing now, and you are getting back what you have always wanted to. So nothing more like this. This is the reason they have just given one card, और कार्ड ही नहीं है. So I was just looking into कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर गई, but everything is there, everything is there. Wow. Angels are guiding you. You have been protected, guided by angels, by the cosmic energies, the energies which is the higher source. You have been guided by all what you want, everything you're getting. Wow. Even your 5 element are also getting balance in this, I can see. So this is a moment of balancing. This is the moment of perfect balancing. आपने अपने रिलेशनशिप में अभी जो कुछ भी एफर्ट्स डाले थे, जो भी कुछ किया है, नाउ इट्स टाइम टू रीप दैट एफर्ट्स, बिकॉज आपका जो बैलेंस है, जो आपने किया है, वो खुद बैलेंस एंजल्स के हाथ में है. वो खुद एनर्जीज काम कर रही हैं. सो नथिंग मोर देन दिस. ऑसम, वेरी नाइस, beautiful card for pile number one. I'm very very happy for all of you. Let's see what moon cards are guiding us, क्योंकि 14 is approaching, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी इफेक्ट करती है. सो देखते हैं क्या है. ओह वाओ, something magical is going to happen for you, pile number one, in this new moon eclipse, and that is on 14th. Wow, just see this card. Such a beautiful card. Wow, very good. And what do you need to release? So please, अपनी जो भी ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हो, जो भी आप रेस्टलेसनेस हो आ रही है, जस्ट
warding off. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको. You are balanced, you are perfect. Even right now the time is 5:05. This means perfectly balanced situation. और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. That too a good changes. You are moving towards the higher self. You are moving towards something big. Awesome, awesome, awesome. Very beautiful card. And one more thing to all the beautiful people who have chosen pile number 1. See, on 14th of December, I am arranging one meditation workshop that is for just for 30 minutes. And the purpose of this meditation is to release what is not serving for us. All that fears, all that trauma which you have gone through. So years, I'm not talking about 2020, I'm talking about years and years. So I will be working with archangels, I will be working with cosmic energies, will be working with spirit guides, animal guides, to try to take out the maximum what can be healed at one go, that too in 30 minutes. And this is the best time of releasing, because the coming year and years, I would say the coming years जो हैं वो बहुत ही crucial हैं. Crucial not in the sense like I'm giving you some kind of a fear or something, but it is a time that अगर आज हम इन चीज़ों पे अपने काम कर लेते हैं, if we work perfectly on these matter, then surely you will be getting what you always wanted to. So there will be no looking back. I hope this makes sense to a lot of people. And if you really want to know about it, description box, so you have to do a little bit of a very small amount of energy exchange and you can be part of it. Okay, very nice card. Okay, so just give a pause to this video right now. आप अपने मन में जो भी एक क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं and then you can see your answer. It's yes or no. Okay, it is maybe. It is neither yes nor no. So it is maybe. Okay, maybe. Okay, so what dragons are guiding us for this? Oh my god, this is something really awesome. See, the rainbow card for the relationship, this relationship. If you get a rainbow, what else you want? All the colors of your life. Oh my god. It brings a leap of joy that opens new door. Sun is there. Clouds are there, obviously. And the rainbow is there. Okay, let me explain a little bit about it. Have trust. अगर आपको कहीं किसी चीज़ में इशू लग रहा है, कुछ भी आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं, so this is the time of keeping that faith in you, in your energies, as well as specially faith on the divine. आप जिनको भी मानते हैं उन पे फेथ रखिए, क्योंकि हमेशा वो आपको वो प्रॉब्लम से ऐसे करके निकालते आए हैं, अभी भी वो आपको वैसे ही निकालेंगे. सो नथिंग टू वरी, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. समथिंग मोर इज कमिंग अप, एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप. बहुत सारी अपॉर्चुनिटी टू रिलेशनशिप. इट कैन बी रिलेशनशिप में तो नो डाउट देयर इज़ नो इश्यूज एज मच, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं जो नीड टू बी क्लैरिफाइड, तो दिस इज़ द बेस्ट कार्ड आई थिंक. ब्लू ड्रैगन ओके इज गाइडिंग अस अगेन. थोड़ा बहुत आपके हार्ट चक्र को क्लिनजिंग की ज़रूरत है. यू एंड योर पार्टनर नीड टू डू दैट्स इट. अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग इज absolutely wonderful. I'm very happy for pile number 1. Awesome. And one more thing, if you have chosen this blue color turquoise, means you need to work on your throat chakra. Okay, कभी क्या होता है, हम जब we talk to people, we talk about something else but they take it somewhere else. So be very careful. अगर आपको लगे कि आप ऐसा कुछ चाहते हो कि अगला आपकी the partner of yours should listen to you, agree the way you want it, आप जो explain नहीं कर पा रहे हो उनको अपने emotions को, so use this. Okay, just use this will really help you out. Okay, so I'm very happy for pile number 1. Thank you so much for watching, and I think you are subscribing my channel, so whosoever is watching, do subscribe.
क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी, आप लाइक बटन दबाओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, सो आई कैन get more and more things for you guys. Love you all. Take care. And please be careful. 14th December. I really want more and more people should join. It is very important day, and I tell you, you will never regret that. Just go for it. Go for it. Okay, everyone. Pile number 1. Thank you so much. Love you. Take care. And now let's jump to pile number 2. So rhodochrosite. Let's see what अगर हम आप rhodochrosite है तो this means कहीं ना कहीं आपको you need more and more love in your self. ओके आपके सेल्फ में कहीं लव मिसिंग है या कुछ एक चीज़ है जिस पे आपको काम करना है, एंड यू नीड मोर एंड मोर लव इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि जहाँ हम खुद वो चीज़ अपने में लैक करते हैं तो वही हमारे सिचुएशंस में दिखती है, राइट? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दिस रिलेशनशिप. ओके, सो यू आर गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड. मे बी आप लोगों को, कई लोगों को लग रहा होगा देयर इज सम सिचुएशन वेयर यू नीड टू बी फील दैट एज यू आर गार्डेड और नॉट. तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग गार्डेड हो, प्रोटेक्टेड हो. सो देयर इज़ नथिंग टू वरी कि आपको कोई हार्म कर रहा है. एंड इफ़ यू कैन सी दिस, द आर्कएंजल माइकल इज़ विद द स्वॉर्ड. So that means you are totally protected. Okay, now decide to be happy now. आपने बहुत हार्डशिप देखी हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, स्टिल यू ऑलवेज आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कहीं ना कहीं यू फील बैड कि वाई दिस मी, वाई टू मी, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. सो बी हैप्पी, दिस इज़ अ टाइम. एंजल्स आर टेलिंग यू, योर हायर सेल्फ इज टॉकिंग टू यू, योर ऑल द पावर एनर्जी, जिसको भी आप बिलीव करते हो, जिसको भी आप मानते हो, वो सब ये बोल रहे हैं कि येस इट्स टाइम टू बी हैप्पी नाउ. तो वो टाइम टर्निंग अराउंड हो रहा है. येस, यू नीड सम काइंड ऑफ अ एनर्जी हीलिंग वर्क फॉर योर रिलेशनशिप. कुछ चीज़ें हैं जिनको रिलीज़ करना है आपको. सो फॉर दैट यू नीड सम काइंड ऑफ अ healing process. It can be any kind of a modality you can use. अगर आप किसी modality में डील कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो. अगर आप क्रिस्टल्स पे बिलीव करते हो तो यू कैन बाय मे बी rhodochrosite really works good for you and your partner. तो वो हो सकता है. अगर आप स्विच वर्ड्स में बिलीव करते हो तो यूज़ दैट. जिस भी modality में आपको ट्रस्ट है, just go for that. This is what the for the pile number 2 हमें मून कार्ड क्या बता रहे हैं. एज 14th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि उस दिन हमारा लास्ट न्यू मून है इस साल का, एज वेल एज वी हैव अ सोलर इक्लिप्स ऑन दैट डे. सो रियली वांट टू नो कि क्या एनर्जीज, अगर आप लोग कुछ फील कर रहे हो, कुछ आपको हैवीनेस कुछ फील हो रहा है या अनईजीनेस फील हो रहा है बिकॉज ऑफ द मून शिफ्ट, then please join me on 14th of December. I am organizing one meditation that is like cleansing meditation, जिसमें आपका ना ही 2020 की क्लिनजिंग हो रही है, एजेस की क्लिनजिंग, मे बी योर चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर कुछ है उसको भी क्लीन किया जाएगा. I don't know to what extent that will help you, but yes, it will help you. I am not giving any sureties for anything कि इतना हो जाएगा, because these are the energy work. इसमें आप define नहीं कर सकते कि क्या चीज़ काम करेगी, but yes, it will work because it's a very powerful meditation which is happening. एंड आई रियली वॉन्ट, बिकॉज जो उस डे की अपनी एनर्जीज़ हैं वही इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगर हम रिलीजिंग पार्ट करते हैं तो इट्स बैंग ऑन. आई हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस जहाँ पे इन मिनट्स लोगों के सालों की क्लिनजिंग हो गई है. देयर इज़ अ वन केस जहाँ पे अ पर्सन वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सो मैनी ईयर्स, उनकी वो स्टक थी जॉब, लेकिन विद वन दिस क्लिनजिंग ही गॉट अ जॉब. सो यू नेवर नो वट वर्क्स फॉर यू, राइट? Okay, so moon guidance is giving us, don't let pride get in your way. So हम नहीं जानते कि ईगो हमारे साथ कैसे प्ले कर रही है. कभी कभी हमें लगता है वी आर राइट, बट एक्चुअली द ईगो इज़ प्लेइंग इट्स रोल. सो थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए. और इस टाइम पे जर्नली एनर्जीज ऐसी होती हैं, हमें लगता है, एंड 14 की एनर्जी एक्चुअली में ऐसी है, आपको बहुत सारे मिथ इल्यूजन्स होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नो दिस इज़ नॉट मी, इट्स नॉट माई ईगो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बट वो ईगो है.
So please be careful, and your dreams need a practical plan. Looked into it, okay? So yes, things can work out. Everything is possible. Nothing is impossible. And please, everyone, please join on 14th of December. I really want to see more and more maximum people in this, because I know what I will be giving, giving. But आपके लिए वो कहाँ कैसे काम करने वाला है आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती हूँ. So please be part of it, because I want all my subscriber and all the new people who are joining me, that I want all of you to be happy, prosperous in 2021. जो हो गया इतने सालों की चीज़ें उनको भूल जाते हैं. Let's move forward. Let's go ahead. ओके सो अगर आप चाहते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, तो आप उसको चेक कर सकते हो एंड बी पार्ट ऑफ इट. जॉइन इट. यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जिसको भी आप हेल्प देना चाहते हो, जिन क्या पता आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए और आपके काम हो जाए. यू नेवर नो. ओके सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. ओके नो, थर्ड क्वेश्चन. जस्ट पॉज हियर द वीडियो. आप कोई भी एक अपना क्वेश्चन पूछो. आस्क योर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, जिसका आंसर येस एंड नो में हो. सो एंड देन आई विल टेल यू द आंसर. Okay, so answer is no. It's no. It's big no. Okay. Okay. And what the dragons are guiding us to get better in this relationship. इस relationship में आपको क्या काम करना है वो आपको dragons guide कर रहे हैं. Isn't it good? Okay, so they are telling you balance yourself. Your yin and yang is not balanced. So what you can do is आप अपने घर पे एक maybe lot of people are single also, or they want to get married, लेकिन उनको relationship में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. Anyhow, if it is, even though they can also keep a lotus in their room. And people who are married but still they are not in a very healthy relationship, because ये कुछ एक कार्मिक है. तो प्लीज़ पाइल नंबर 2, प्लीज़ ज्वाइन 14th of December. आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी हीलिंग हो सकती है. ओके क्योंकि 14th of December की जो मेडिटेशन है, उसके बाद 21st अगेन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शन हैपनिंग between Saturn and Jupiter. उस दिन I will be sending a free healing to everyone. Okay, so please join in as many as you can. Okay, so please balance your energies. आपकी energies balance नहीं है relationship में. More of pink color is required. More and more of pink. Lotus आप रखिए अपने room में. It will help you out. Okay, pink flowers रखिए. समथिंग रिलेटेड टू मोर ऑफ पिंक. क्लिनजिंग रिक्वायर्ड है. अगर आप किसी मोडालिटी में बिलीव करते हैं तो प्लीज़ गो हेड. ओके यस, अगेन द सेम थिंग इज कमिंग अप. कुछ कार्मिक आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. क्या आपको अपने आसपास एंड्स दिखाई देते हैं? पाइल नंबर 2. डू यू सी लॉट ऑफ एंड्स अराउंड यू? यू नीड मोर एंड मोर ऑफ लव. whosoever is watching it, you feel that love is missing in your life, please, it's nothing like it. कुछ चीज़ें हैं आप रिलीज़ करोगे, believe me, things will be much in a better phase for you. Yeah, yes, you need lot of please, if possible, go for rhodochrosite. You need it, because rhodochrosite help us to heal our old patterns. So आपको वो patterns को clean करना बहुत ज़रूरी है. So please do it. Pile number 2, must required, needed, must needed. So this was all for pile number 2. Thank you so much for watching my videos, and please do let me know how was the reading, and is it so like आपके साथ ये resonate करती है कि नहीं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा. सेकेंडली, थैंक यू सो मच फॉर पोरिंग योर लव. और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड ये तो बनता है अगर आपको पसंद आया है. सो जस्ट गो हेड विद दिस एंड join me for later updates. Okay, thank you so much. Okay, so let's move to pile number 3.
what is there for pile number 3? Let's see. So another beautiful crystal. This is my favorite, strawberry quartz. Strawberry quartz क्या होता है? आपकी लाइफ के बहुत सारे जो तामझाम है लाइफ में, वो आपकी ओन क्रिएटेड है. इट्स लाइक यू ओवर थिंक अलॉट. आप खुद से बहुत सारी चीज़ें सोचते हो और खुद ही उसको मैनिफेस्ट कर देते हो, और फिर आपको लगता है थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे इट शुड. सो प्लीज़ पाइल नंबर 3, टेक केयर ऑफ दैट. सो इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू वेयर स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स, क्योंकि वो आपको ऑर्गेनाइज करेगा, वो आपको बैलेंस करेगा, वो आपके यिंग एंड यांग को बैलेंस करेगा, आपके ओवर थिंकिंग को कम करेगा, और आपको बताएगा कि कहाँ फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, और किस पे कितना ध्यान देना है. So it is like Ramban types of for everything. So maybe the pile number 3 people, they are overthinkers. So okay, let's see what is there. What is the present situation in the relationship? आपकी सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक है. इट्स ऑलरेडी रिजॉल्व. मे बी कुछ चीज़ें थी पहले लाइफ में जो आपको पीस हार्मनी नहीं दे रही थी, बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड. बट द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने डिवाइन टाइमिंग्स का ध्यान रखना है, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ. अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इज़ देयर. Divine is ready to shower so much on you. If you call us abundance, see, such a bright yellow light is there, such bright yellow light, na? So when the such a bright yellow light is there, it means feathers दिख रहे हैं उसमें हमें म्यूज़िक दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सैडनेस है. मे बी यू आर ओवरवेल्म्ड विद द वर्क. आप कुछ सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो. सो जस्ट काम डाउन, क्योंकि वो आपकी हेल्थ को हैम्पर करेगा. समथिंग मोर इज देयर. दिस एंजल इज होल्डिंग. ओ वाओ, आपको स्वॉर्ड की भी प्रोटेक्शन मिल रही है. आप गाइडेड हो, आपको बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेज भी आते हैं. यू आर अ वर्किंग पर्सन जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. आपने स्ट्रॉबेरी कॉर्ड सुना है, तो वही चीज़ यहाँ गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने ऊपर काम करना है. आपको यू नीड टू फोकस ऑन योर माइंड. सी, यहाँ पे जो येलो है, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ ऑल फियर कमिंग अप. ठीक है, फियर इज, दिस इज़ अ येलो कलर इज ऑफ सोलर प्लेक्सेस. तो जब हमारे फियर बढ़ जाते हैं तो हमें येलो की पावर ज़्यादा चाहिए होती है. तो इट इज़ लाइक आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ऑल इन योर माइंड. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर माइंड. तो आप अपने आप को शांत करते जाओगे, आप फोकस अपनी हेल्थ पे और बाकी चीज़ों पे करोगे, एवरीथिंग इज़ फाइन. ओके, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर पाइल नंबर 3 कि आपकी सिचुएशन रिजॉल्व है. थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको पर्सनल लेवल पे काम करना है. सो अदरवाइज ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन. ओके, अब देखते हैं मून हमें क्या गाइडेंस देते हैं, बिकॉज 14th इज़ अप्रोचिंग, और 14th इज़ अ न्यू मून और विद सोलर इक्लिप्स. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है जब हम हीलिंग करें, जब हम अपनी रिलीजिंग करें. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि ये लास्ट न्यू मून है हमारे इस साल का. ए बेस्ट टाइम टू रिलीज विच इज़ नॉट सर्विंग फॉर अस सिंस एजेस. क्योंकि जो आने वाला टाइम है, ये जो हमें लीप ऑफ फेथ मिलने वाला है, ये ईयर्स के लिए मिलने वाला है. इट इज़ नॉट फॉर 1 year, फॉर 2021. दिस लीप ऑफ फेथ और लीप ऑफ चांस व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज़ फॉर ईयर्स. और हम अपने आगे बच्चों को ये देके जाने वाले हैं. सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव ऑर्गेनाइज दिस हीलिंग, दिस मेडिटेशन ऑन अ सच ऑस्पिशियस डे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक पहुंच पाए, उनको पता चले दैट समथिंग लाइक इज़ हैपनिंग. इट गोना बी वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. बिलीव मी, it will change your life, that's for sure. Okay, so let's see what moon is guiding. Oh wow, a new romantic cycle begins. See, a balance is there. ठीक है, तो मे बी आपके लाइफ में आपको, या तो आपका जिनके साथ रिलेशनशिप था वो मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा कि यू आर गोइंग फॉर अ न्यू रिलेशनशिप. इट इज़ लाइक समवेयर थिंग्स आर बैलेंसिंग इन योर रिलेशनशिप. लॉट ऑफ बैलेंस इज कमिंग अप.
Awesome. The similar card was there in the pile number 1 also. So I'm very happy for pile number 2, oh sorry 3, because कहीं ना कहीं आपको शायद लगता होगा आप अभी तक दे रहे हो. So now it's time to receive. So bang on all the pile number 3. I'm happy for you. Okay. And time for healing. Yes. इट्स टाइम फॉर हीलिंग. तो आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो. तो प्लीज़ अगर आप 14th का वो ज्वाइन कर सकते हो, इट विल बी ऑसम ऑसम ऑसम. अगर ड्यू टू सम रीज़न आई हैव ऑलरेडी अरेंज 2 batches, one in the morning, one in the night, because lot of people are there and I know it's Monday, people are working, so I managed somehow like this. बट स्टिल अगर किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ गो फॉर द स्ट्रॉबेरी गॉड्स. आई एम नॉट सेइंग बाय फ्रॉम मी, यू कैन बाय फ्रॉम एनी वेयर, बट येस जस्ट चेक कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सही है कि नहीं है. राइट. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ओके. होल्ड योर विजन. आप प्लीज़ फोकस अपना हटाइए मत. डोंट वरी वेयर एवर थिंग्स आर मूविंग फॉर यू, बट कीप योर फोकस. हैव फेथ. आपके लिए बार बार फेथ आ रहा है. So have faith, faith in yourself, faith in your divine. Everything is possible. आपके साथ कुछ भी coincidence नहीं हो रहा. Everything is happening at the divine timing. सब कुछ आपको divine दे रही है ऐसे platter में सजा के. So be happy. Just wait and be happy. Okay. अब अच्छा yeah. Third question is आप अपना कोई भी एक क्वेश्चन सोच लो related to this relationship. Close your eyes. और आप पॉज करना चाहते हो पॉज कर लो 1 सेकेंड के लिए वीडियो. अपना एक क्वेश्चन सोचो एंड देन आई विल गिव यू द आंसर कि येस एंड नो. ओके. आई डोंट नो आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है. मैं सिर्फ एक येस एंड नो बता रही हूँ आपको. फॉर पाइल नंबर 3 इट इज़ येस. ओके. ओके. सो नाउ सी लेट्स सी व्हाट ड्रैगन्स आर गाइडिंग अस. ड्रैगन. ओके. फॉर पाइल नंबर 3 यू हैव अ गाइडेंस कि आपको क्रो को फीड कराना है, एनिमल्स को फीड कराना है. दिस इज अ गाइडेंस कमिंग फॉर यू. पाइल नंबर 3 कुछ रिलीजिंग के लिए. या you need to work with animals, especially I'm seeing the birds, squirrel, ant. Pile number 2 में भी आया था, but it was a different aspect. Okay, so you have been guided. See how beautifully dragons, angels talk to us, right? You have to strengthen yourself. आप बहुत डरे हुए हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो. Nothing to worry, everything will be fine. You need to strengthen yourself. सिर्फ आपको खुद को strengthen करना है. Use more and more of blue color in your attire, and things will be fine. Lot of blessings are there for you. Pile number 3, I can see that they are ready to give you everything. बहुत सारी blessings आपको मिलने रही हैं. इसमें मुझे रेनबो भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है. सो बी हैप्पी. पाइल नंबर 3 रेनबो वॉज देयर इन पाइल नंबर 1 ऑल्सो. सो प्लीज़ बी हैप्पी. रेनबो जब दिखता है तो वो मुझे बहुत अच्छी एक वाइब्स दे के जाता है दैट योर लाइफ इज़ बिकमिंग फुलफिल्ड. योर लाइफ इज़ बिकमिंग इट्स कमिंग टू फुल सर्कल द वे यू ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव योर लाइफ. So it's such a beautiful card coming up. I'm so happy for pile number 3. Please feed animals. This is what the guidance I'm getting here for you guys. So this was all for the pile number 3. And if you find that this reading resonated with you, please do comment and let others know too. And thumbs up तो बनता है. और जो लोग देख रहे हैं पहली बार और अभी तक उन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड नोटिफिकेशन बेल को भी कर सकते हो, आइकन आप दबा सकते हो, सो दैट एवरी टाइम आई कम अप विद न्यू videos or my card reading, so it will help you, right? And thank you for all the love you are pouring on me. Thank you so much everyone. Love you all. Take care.